Institute on deputation as a director with effect from 8th June 2020 and had held Indian Oil Golden Jubilee Professional Chair in IIT Kanpur. Professor Mishra has been conferred with several awards and recognitions. He received the doctoral degree from IISc Bangalore, India in 1994. His areas of interest are propulsion, combustion, computational, fluid dynamics, and atomization. Professor Mishra has edited 5 textbooks and 6 edited books in the field of combustion and propulsion. He has published more than 233 research papers in the international national journals and 5 patents to his credit. He has also developed a unique virtual lab named Virtual Combustion and Atomization Lab. Professor Mishra has undertaken more than 38 research and consultancy projects from various agencies, research labs, and industries. He has developed 6 online courses under SWAYAM platform, a national initiative of MHRD. Beside this, he has designed and developed a unique MOOC course, Introduction to Ancient Indian Technology, on SWAYAM platform of NPTEL. He has published 2 edited books titled Forays into Ancient Indian Science and Technology and second book named Glimpses of Ancient Indian Science and Technology. He has also delivered several invited lectures on ancient Indian spiritual knowledge system by several organizations across India. He has written several articles to popularize science and technology among common people and delivered several lectures and discussion on television and radio related to ancient science and technology. He does dabble in Odia literature and has 2 books in Odia language to his credit. He is well known as motivational speaker and is very popular among youth circle. Today, Sir is going to deliver a talk on the topic nature-centric ancient Indian technologies for modern times. Mishra sir, please enlighten our audience with your noble words. सबको मेरा नमस्कार. Respected Professor Jha, the Director of SMS School of Management Science, and Professor Chandramouli Upadhyay, the guest of honor, and Dr. Amit Kishore Sinha, and also the Karthik Singh, if I am right, and co-coordinator of this. And of course, I am grateful to all of you that you have invited me to discuss a very important topic which is very close to my heart. And it is, I must congratulate all of you that you people have worked hard to make a success of this 9th International Conference on Ancient Wisdom, Indian Wisdom, Panacea for Sustainable Well-being. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा हिंदी में बोलने वाला हूं क्योंकि अंग्रेजी तो आजकल प्रचलन है, हिंदी प्रचलन नहीं है भारत में. यद्यपि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, लेकिन मैं आजकल कुछ साल हिंदी में बोलना पसंद करता हूं. इसलिए करता हूं कि भारत के बारे में बात करेंगे और अपने भाषा में नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता. बहुत अच्छा. और भारतीय भाषा जो है अंग्रेजी की तुलना में बहुत गुना बढ़िया है. इसीलिए है कि अंग्रेजी जो है एक अवैज्ञानिक भाषा है और भारतीय भाषा जितना भी है वो वैज्ञानिक भाषा है. और इस देश में पैदा हम हुए हैं और अंग्रेजी को इतना लपेट के रखे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. और ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. जैसे कोरोना वायरस जीवाणु है वो हमको खा रहा है, ऐसे अंग्रेजी हमारे परंपरा को नष्ट वस्ट करने नहीं हो पाएगा. इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, सिस्टम प्रॉब्लम चेक कर चुके हैं. ग्रीन बैकग्राउंड मांग रहा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का इशू. कोई समस्या है. सॉरी.
सॉरी सर, इट्स फाइन। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो वीडियो बनाए हैं वो बहुत बढ़िया है। मैं ये आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और इसमें बहुत सारे चीज को बताया गया है और उनको वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया। ये भी एक सराहना का विषय है। लेकिन मैं एक सवाल भी करता हूं, इसलिए जो भी आप उसमें डाले हैं आपके पास सबूत है क्या? सबूत नहीं है तो सबूत को इकट्ठी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल में हम ये जो प्राचीन परंपरा और हमारा ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के ऊपर मैं मेरा समय दिया हूं कुछ। लेकिन मैं 3 तरह का लोगों का इधर देखता हूं भारतवर्ष में। जो मैं बहुत सारे जगह पर जाता हूं, अभी तो कोरोना है इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, फिर भी बहुत सारे लोग हमको बुलाते हैं बोलने के लिए। अभी बोलने का अभी प्रचलन ज्यादा हो गया है कोरोना के समय। लेकिन इसमें 3 पक्ष होता है। एक जो कहते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में कुछ नहीं, और कुछ कहते हैं सब कुछ था, और कुछ कहते हैं जो सही है उसको बताते हैं। लेकिन जो कहते हैं कुछ नहीं था वो गलत है, जो कहते हैं सब कुछ था वो भी गलत है हमारे हिसाब से। और मैं उनको खतरनाक मानता हूं जो कहते हैं सब कुछ था क्योंकि उनको समझ में नहीं है। वो भला करना चाहते हैं लेकिन नुकसान करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, मैं वो विषय में आता हूं। वो क्या है कि आप लोगों ने कह दिया कि नेचर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी जो विषय है, नेचर टेक्नोलॉजी, नेचर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ऑफ इन मॉडर्न टाइम, राइट? तो वही विषय है ना। अमित जी थोड़ा बताइए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो नेचर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। लेकिन एक सवाल में उठता है, हम क्यों इसको देखें? इसका हिंदी आप अनुवाद करेंगे, प्रकृति परक भारतीय प्रौद्योगिक। आज के समय में जब हमारे सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी विद्यमान है, तो हम भारतीय परंपरा में जो टेक्नोलॉजी था पहले, आज तो नहीं है प्रचलन में ज्यादातर। मैं कभी कभी सोचता हूं और बोलता हूं, तो मैं जब ये काम शुरू किया था आईआईटी में, आईआईटी बहुत सारे लोगों ने हमको लांछित किया। बहुत सारे हमको कहे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छे रिसर्च करते थे और उसमें समय दो, और तुम इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, ऐसे बहुत सारे कहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं करता हूं खुद को, मैं आप लोगों भी करना चाहता हूं, क्यों हम देखें आज कि सस्टेनेबल करने के लिए, जो कि आज का विषय है, वो हमको देखना पड़ेगा भारतीय परंपरा में जो टेक्नोलॉजी था, जो कि ब्रिटिश लोगों आने के बाद और उनका जो पॉलिसी है उसको डालने के बाद, और जो भी हमारे अभी तक जितना भी सरकार आए हैं, वो सब हमारे जो परंपरा है में टेक्नोलॉजी था, जो उसको लोक विद्या में कहता हूं, लोक ज्ञान परंपरा था, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुले। और हम लोग सब उसमें शामिल है, मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं कि मैं शामिल नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं रोजी रोटी करता हूं कोई जो पाश्चात्य देश का जो प्रौद्योगिकी है उसमें काम करके, ठीक है। लेकिन इनका जरूरत क्या है आज के, कोई बता पाएगा? मैं एक्चुअली क्या है कि ये जो एक तरफा जिसको प्रवचन कहते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय परंपरा में प्रवचन देना ऐसे नहीं था, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी आप किताब उठा के देख लीजिए, उसमें संवाद होता है। कभी ऐसा एक तरफा बात नहीं होता है। होता है क्या? कोई बता दे तो मैं देखूं।
तो भगवत गीता देख लीजिए, महाभारत देखिए, रामायण देखिए, सब में कथोपकथन है, मतलब क्या है कि संवाद है। तो इसलिए ये सवाल मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि भाई क्यों देखे। आजकल हम लोग, जैसे मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का में पढ़ाता हूं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी रखे हैं कि लोगों को क्या है कि चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और आजकल जैसे इंटरनेट है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो वो हम क्यों देखें, क्यों देखें आज के दिन, और प्रकृति परक क्यों देखें? क्योंकि हमको सिखाया जाता है इंजीनियरिंग में, साइंस में, कि आपको प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो अभी प्रकृति के पास हम क्यों जाएंगे? नेचर सेंट्रिक का मतलब प्रकृति परख, प्रकृति के साथ मिलजुल के कुछ काम करना है, क्यों करें? ये इसका मैं जवाब दे देता हूं। आप लोग हो सकता है कि इसको चिंतन मनन नहीं किए होंगे, क्योंकि आज की जो जमाना है, समय बहुत कम मिलता है। जितना भी संसाधन, जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना भी प्रौद्योगिक हम किए हैं, यंत्र बनाए हैं, किसके लिए? किसके लिए हम ये यंत्र का जरूरत है? ये यंत्र जो है, हम यंत्र मानव कर दिए हैं, लोगों को अभी यंत्र मानव कर दिए हैं। मेरे को तो, मैं जो देखता हूं आसपास में, मेरे को लग रहा है कि ये यंत्र मानव आ रहा है तो हम लोग यंत्र मानव जैसा हो गए। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, और समय को बचत करने के लिए ही भी यंत्र का उद्भावन और उद्भव हुआ था। कितना भी यंत्र है, क्या समय? लेकिन समय किसके पास है क्या? अभी किसके पास समय नहीं, सोचने के लिए भी समय नहीं। तो ये एक प्रकृति को नष्ट करने के लिए ये तुले हुए। जितना भी आपका आज का टेक्नोलॉजी है, जो भी अभी हम व्यवहार में कर रहा हूं, जैसे कि मैं अभी भाषण दे रहा हूं आपको, मेरे को पता नहीं आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, मेरे को पता नहीं कि आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे। तो प्रयास कर रहे हैं समझने का। नहीं, और लेकिन मैं अभी, मान लीजिए मैं अभी आपके साथ होता तो मेरे को समझ होता है, मैं जैसे कि शिक्षक हूं, तो शिक्षक पता लगा देता है कि भाई वो बच्चा हमारा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये मेरे पास जो भी ये लोग है सुन रहे नहीं सुन रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे। ये टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा भाषणबाजी ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका मूल रूप से नहीं होता। और वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, जैसे कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं जाता, इतना प्रभाव नहीं होता है प्रभावशाली। तो लेकिन हम क्यों देखें, ये सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप उसको कम से कम अभी सोचना शुरू करें। मैं आपको बताऊं, प्रकृति को हम क्यों देखें। प्रकृति को इसीलिए देखें कि हम लोग अभी इतना नष्ट कर दिए। जैसे कि जमीन है, जमीन में से अन्न उत्पन्न होता है, जैसे कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। जो होता है अन्न, अन्न के बिना होता है कुछ का? अन्न प्रतिष्ठा देवा, इवन देवता लोगों के लिए भी अन्न चाहिए, तो मानव के लिए अन्न चाहिए। तो अन्न कहां से जात होता है? वो जात होता है धरती से, मिट्टी से। मिट्टी को हम क्या बना दिए हैं? बंजर बना दिए। अच्छा, हवा लेने के लिए हमको क्या चाहिए? हवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? हवा को हम जहरीला बना दिए। बनाया नहीं बनाया? अभी जितना भी सिटीज है, आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। ऑक्सीजन आप नहीं खरीदेंगे तो मरोगे, ठीक है? और पानी है, जल के बिना कोई जीवन है क्या? जल को हम दूषित कर दिए, प्रदूषित कर दिए। जितना भी भारतवर्ष सिर्फ नहीं है, पूरा दुनिया में भारतवर्ष अग्रणी है। उसमें हमेशा भारतवर्ष अग्रणी रहता था। अभी जो नकारात्मक चीज में अग्रणी हो गया है सब में। तो वो जितना भी नदी है, जितना भी पानी का धारा प्रवाह है,
सबको हम प्रदूषित कर दिए और हम लोगों के अंदर इतना बीमारी है। अच्छा, इसको तो कर दियो, लेकिन अभी कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ बचा है क्या? उससे नहीं बचा। अच्छा, और एक चीज, तो आप देखोगे भारत में कोई शांति में रहता है क्या? जीवन में मानवता जो होता है, मानव है क्या? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आज का जो आसुरिक प्रौद्योगिकीकरण है और जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाया है और हम लोग अंधानुकरण कर रहे हैं, तो इसका कारण है। हम कहां जाएंगे? 140 करोड़ देश का है, तो 140 करोड़ लोगों को हम लोग कैसे संभालेंगे? आप देखेंगे आज का बारिश दिन, पहले जमाने में चतुर्मास्या होता था। चतुर्मास का बारिश इतना होता है कि लोग ध्यान व्यान करते हैं, थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। अभी बारिश का कोई संभावना, कभी कभी बारिश हो जाता है, कभी कभी बड़ी समस्या है। क्यों हुआ है? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोगों ने प्रकृति को दोहन किया। इसका आप जाके देखेंगे कि जो भी हमारे परंपरा अभी भी बचा कुचा है और जिसको लोगों ने ना समझ होके अभी बहुत सारे चीज कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको भी क्या कहते हैं कि उसका निकाल के फेंकने के लिए भी कर रहे हैं, उसको विकृति कर रहे हैं, यू नो। तो उनका जो देखेंगे तो ऐसा जो प्रकृति, क्योंकि हमारे प्रकृति के प्रति प्रेम कब से है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमारे वेद जब से है तो उससे हमारे प्रकृति के पास हमारे, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आप ढूंढोगे तो पता चलेगा कि इनका कारण जो है वो पश्चिम देश से शुरू हुआ है ज्यादातर। क्यों? और पश्चिम देश भी अभी मान लिए कि अभी उनको समझ में आ गया कि जो परंपरा भारत में बचा कुचा अभी भी थोड़ा थोड़ा है और नष्ट भ्रष्ट हो रहा है तेजी से, क्योंकि भारतीय लोग पश्चिम देश को अंधानुकरण कर और उसको ना समझ हो गए ये लोग। तो अभी जैसे कि मैं कभी कभी भारत को देवभूमि कहा जाता था, मैं उसको कहता हूं असुर भूमि, क्योंकि असुर का क्या गुण होता है? मैं कहूं असुर क्या है, देवता क्या है शास्त्र के अनुसार? कोई बता पाएगा तो मैं एक्चुअली मान लूंगा। कोई बता पाएगा? थोड़ा कठिन काम प्रश्न है, लेकिन भारतीय जो है उसमें हमारे शास्त्र में बहुत लिखा है। मैं थोड़ा असुर का एक श्लोक बता देता हूँ, व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय लगेगा और मैं थोड़ा अभी विषय में भी प्रवेश नहीं किया। ठीक है, तो दंभ दर्प अतिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च संपदम आसुरीम। ये जो 6 गुण है वो असुर का है। और मैं जितना देख रहा हूं इन मेरे को मिला के, ऐसे नहीं कि मैं असुर नहीं और असुर का देश में आ गया हूं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब नहीं भी कोई अच्छे आदमी नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई देश रहेगा उसमें कोई अच्छे लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये विधान ले। लेकिन ज्यादातर उनका संख्या तेजी से बढ़ रहा है, ये एक दुखद विषय। ये हो रहा है क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी का दुष्परिणाम है और हम प्रकृति को मां नहीं माने। हमारे जो शास्त्र कहता है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्यम, मैं ये धरती को मां, मेरा मां है। मां से बैर नहीं किया जाता है, मां के ऊपर विजय नहीं किया प्राप्त किया जाता है। लेकिन हमारे जो अब्राहमिक रिलीजियन है जिन्होंने पूरा दुनिया को नष्ट कर दिया है, वो संप्रदाय है, क्योंकि संप्रदाय लोगों को तोड़ता है, तो तोड़ दिए और मरोड़ दिए, नष्ट कर दिए। आप देखोगे कि जो भारतीय परंपरा अभी बचा कुचा है
कपूर चला गया है, कपड़ा पड़ा है, कपड़ा को निकालने के लिए ये ग्लोबलाइजेशन अगड़म बगड़म जो चल रहा है वो सब चल रहा है, उसको निकाल के पूरा फेंक दो। तो जैसे कि और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये स्थिति अभी है, ये मेरा मानना है, मतलब मैं जो समझा हूं। तो लेकिन अभी जो है पूरा दुनिया त्रस्त है, किससे? जो टेक्नोलॉजी जो भाव है, भयंकर है, जो प्रदूषण है, इसीलिए बहुत सारे समिट कर रहे हैं। तो वो सब कह रहे कि मैं ऐसे करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसमें होने वाला नहीं है। वो होगा कब? जब हम समझेंगे जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसीलिए देता हूं कि भारत में परंपरा में बहुत सारे टेक्नोलॉजी था। ऐसे नहीं कि भारत में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, वो सिर्फ जब तब करते थे और कुछ करते नहीं थे, ऐसे बात नहीं है। ये जो कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, मैं आपको अभी जो इसमें मैं मेरा जो चीजें मैं दे रहा हूं, एक मेरा एक कोर्स है जो कि पूरा दुनिया का अनोखा कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी। मैं अंग्रेजी में वो दिया हूं क्योंकि आईआईटी का मामला है, आईआईटी जो है तो उसमें तो अंग्रेजी ही चलता है, उसका वर्चस्व है। तो वो स्वयं प्लेटफॉर्म जो है, स्वयं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सबूत के साथ हम बात किए। और तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रचलन हो गया। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आया कहां से आपको पता है? ये सब आया बाहर से। ये जो लोग बाहर से जाके, बाहर वाले जो हमको केमिकल फर्टिलाइजर और वो जो यूरिया, डीएपी, एपी, ये सब चीज करके हमको मस्त हमारा जमीन को बंजर बना दिए हैं, इन लोगों ने आजकल कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ये कैसे सीखे, कहां से सीखे? आप जाके थोड़ा देख लीजिएगा। एक आदमी आया इधर, करीब 10-15 साल रहा, हमसे सीखा भारतीय परंपरा, उसके बाद उधर गया और उसको थोड़ा तड़ोड़ मड़ोड़ कर दिया और उनको मार्केटाइजेशन कर दिया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी आप जाओगे कोई भी मॉल में घुस जाइए, मान लो चावल 50 रुपया है, कोई भी चावल, कोई भी चावल, तो ऑर्गेनिक में जरूर 150 रुपया होगा। क्यों भाई? तुम तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो। तो इसको क्यों है? क्योंकि एक ब्रांड हो गया है। अभी एक लोगों को डराओ, नहीं खाओगे तो तुम मरोगे, नहीं खाओगे तो बीमार होगे। तो ये जो फार्मिंग है इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती। भारतवर्ष में पहले जो था, आजकल उसको भी चर्चा है। ये प्राकृतिक खेती है क्या? तो प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो उसमें क्या कम पैदा हो सकता है क्या? हाँ, कुछ लोगों ने हमको ऐसे सिखाया कि हमारा आबादी जो है कि करीब 140 करोड़ हो रहा है, और हम कैसे संभालेंगे, हमको तो देना पड़ेगा। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लोगों ने बता दिए। हमारा जो है उनका नाम मेरा सुब्रमण्यम, ऐसे साउथ का, स्वामीनाथन, हाँ, उन्होंने एक किया और उन्होंने पूरा भारत को प्रचार प्रसार करके हमको फंसाई दी। और वो नहीं किए, सरकार जो भी था उस समय में वो सब मिलजुल के। लेकिन मेरे पास जो सबूत है मैं बताता हूं। एक जो ब्रिटिश समय में एक गांव में सर्वे हुआ था, 2000 गांव में, चेंगलेपट्टू वो जो जगह है तमिलनाडु में, वो 1 हेक्टेयर में 12 टन वो पैदा कर पाते थे। और आपको पता होगा जो चेंगलपट्टू और तमिलनाडु जो इलाका है वो, इसमें बारिश ज्यादा नहीं होता, उसका जमीन इतना उर्वर नहीं है। जैसे कि गंगा के किनारे जो जमीन है हमारे जो जो उत्तर भारत में, वो बहुत ही बढ़िया जमीन है, तो उसमें तो ज्यादा होगा।
और ये डाटा ब्रिटिश लोगों ने दिए हैं, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग उसमें करिए, क्योंकि मैं जब कानपुर में था उस समय भी थोड़ा खेती किया हूं। खेती का मतलब नहीं है कि मैं अनाज पनाज बोया हूं, लेकिन सब्जी फब्जी हम बनाते हैं। आप सब्जी बाजार से खरीद के खाइए, और सब्जी घर में जो है कि कोई केमिकल ना दे के खाइए, आप देखेंगे ये टेस्ट क्या है, और आपका शरीर सही रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो डाटा है ये क्या है कि वेस्टर्न लोगों का डाटा है, मैं जो आपको बोलने वाला, वो क्या है कि जैसे जो स्पिनाच है, पालक, पालक में आप देखेंगे कि उनका जो पालक में क्या रहता है, आप लोगों को पता होगा, उसमें ज्यादातर आयरन रहता है, आयरन जी। लोहा। लोहा शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और आप उसको प्राकृतिक खेती में करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, लेकिन आप उसको केमिकल दे के करेंगे, जो केमिकल फार्मिंग है, तो वो कम रहेगा। तो कम का मतलब कितना कम हो सकता है? वो करीब मान लीजिए कि 150 गुना करीब कम होगा। तो आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भूसा खा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बीमार होता है। ऐसे बहुत सारे चीज को आप देख सकते हैं। इसके सिलसिले में मैं कुछ काम किया था और वो पब्लिश नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट लिया था। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ, लेकिन हम एक प्रोजेक्ट लिए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, हाँ। वो हमारे अलुमनी लोगों ने पैसा दिए थे। और आप लोगों को पता होगा SC वर्मा करके हमारे एक प्रोफेसर फिजिक्स में, जो फिजिक्स पढ़ता है उनको पता है, वो बहुत बड़े नामी प्रोफेसर है, अब उनको अभी पद्मश्री भी मिला है। तो वो को इन्वेस्टिगेटर थे, मैं इन्वेस्टिगेटर था, उनके जमीन पे हम किए। तो मेरा कहने का मतलब कि भाई हमको ये सब टेक्नोलॉजी, अच्छा बढ़िया। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं अभी ट्रैक्टर में क्या है कि खेती करूं और हम बैल में करूं, तो कौन सा सही रहेगा? ट्रैक्टर में करेंगे तो हमको क्या होगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। और उसमें क्या होगा कि आपको पेट्रोल अभी जैसे कि 100 रुपया लीटर हो गया है, या अभी और भी बढ़ेगा, बढ़ने वाला है, तो उनको देना पड़ेगा, और एक आदमी को भी लेना पड़ेगा। अच्छा, वो आदमी बैठ बैठ के उनका शरीर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। और कर्जा में जो किसान है वो डूब ही जाता है। तो इसीलिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं, किसानगिरी कोई नहीं करता। और जितना भी लोग है गांव में, अभी जो स्थिति है भारत का, गांव में जमीन का भाव तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? कंपनी लोग अभी खरीद रहे हैं। मैं बताता हूं, हम लोग जो नौकरी करते हैं वो लोग खाने के लिए तरसेंगे। जो गरीब लोग है उसको तो सरकार दे देगा, कुछ पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन अभी तो दे देगा। तो इसीलिए, और खाना जो मिलेगा वो जो करेंगे वही होगा। तो ये बड़ी विकट स्थिति में हम लोग अभी हैं। तो इसीलिए हमको प्राचीन परंपरा में जाना पड़ेगा, और प्राचीन परंपरा में जो चीज था उसको परखना पड़ेगा कि हम कैसे उसको सही कर पाए, और अभी कैसे कर पाए। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी जैसे कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में जो अभी फसल होता है उसमें बहुत सारे कीड़ा चीज आ जाता है, क्योंकि प्रदूषित हो गया है, और इम्बैलेंस जिसको कहते हैं ना, देयर इज इम्बैलेंस इन द नेचर। तो देयरफॉर अभी जो सिस्टम है हमारा बिगड़ गया है, बिखर गया है। तो उसमें वो जो परंपरा रहा है वो काम करेगा क्या? जैसे कि कृषि पराशर है, तो वो काम करेगा नहीं। उसमें रिसर्च कौन करेगा? कोई करेगा नहीं, करेगा नहीं तो फंसोगे। लेकिन मेरे पास ऐसा है कि आज जो क्लाइमेट चेंज है, कि उसमें हम कैसे उत्पादन को सही रखें, उसके लिए प्रक्रिया मेरे को समझ में आया हुआ। लेकिन मैं इस विषय का नहीं हूं, इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, लेकिन मैं कभी अभी करने वाला हूं। ऐसे मेरे को, मैं सोच रहा हूं कोई आदमी मिल जाए तो हम करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं। और दूसरा चीज,
मान लो अन्न के लिए आपको खेती करना बहुत जरूरी है, और खेती गाय के बिना नहीं हो सकता है। और गाय जो है हमको गौ माता कहते हैं, इसलिए क्या है कि मानव और गाय के अंदर बहुत समानता है, ठीक है। तो उनका जो अंदर जो भावना है और गाय के बीच में, इसलिए हमारे पूर्वज लोगों ने गाय को पालन करते, गाय को घर में पास रखते थे। उसका बहुत सारे कारण है, मैं अभी समय कम है तो इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि आप जाके गूगल देख लीजिए, गूगल अंकल के पास जाइए, देखिए पशु थेरापी कहाँ हुआ है शुरू, अमेरिका में हो रहा है। डॉलर में लोग जाके दे रहे हैं पशु थेरापी। वो हमसे लिए, वो थेरापी जोड़ दिए जो हमारे जीवन में था, तो उसको बेच रहे हैं, और ये भी इधर आ जाएगा 5-10 साल में, इधर भी होगा। लोग क्या करें, पशुपालन करें, तुमको कोई समस्या है तो तुम जाओ पशु के पास, रहो कुछ दिन और पैसा दो। अच्छा, पानी हमको चाहिए, बांध बांधना है, तो बांध जो बांधना है, जितना भी बांध अभी तक हमारे इंजीनियर लोगों ने बांधे हैं अभी तक, तो उसमें समस्या ही समस्या है। क्या है, वो सब खतरे में है। अभी जैसे कि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, हमारे सबसे बड़ा जो एशिया का बांध है मिट्टी के ऊपर और कंक्रीट थोड़ा है, वो है हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम में फाट आया हुआ है, तो मान लीजिए वो टूट गया, और जितना भी उपकूल अंचल है पूरा जाके बे ऑफ बंगाल में समा ही जाएगा 24 घंटे। तो ऐसे बहुत सारे बांध में, इसका कारण क्या है ना, इसका कारण है सिल्ट डिपोजिशन, और इसमें बहुत सारे वनस्पतियां नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत नदी सूख गई। तो इसके लिए भारतीय परंपरा में बांध था क्या, बांध लोगों ने बांधे हैं, वेद में भी उसका प्रमाण है। वो हमारे जो बांध बांधे थे लोगों ने, मैं आपको एक बताऊं, जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है, अभी भी बरकरार है, अभी भी वो सही है, ठीक है। तो वो रिवर में वो ऐसे उनको टेक्नोलॉजी था कि उन लोगों ने प्रकृति को समझते थे। इसको जो कहते हैं प्रकृति को समझ के करते थे। आजकल जो लोग प्रकृति को ना समझ के कर रहे हैं। और ये जो डैम है, इसको किंग करिकालन है, राजा करिकालन है, चोला वंश का कि राजा जो है करिकल ने बनाया था। करीब 1 जो बीसी होगा करीब, उसको जो माना जाता है 100 बीसी के आसपास। लेकिन वो बढ़िया से चला, अभी जो इसमें अभी भी वो बरकरार है। मैं आपको बताऊं कि उनमें कोई समस्या आ गया था, क्योंकि जो हमारे बांध है वो लोगों को पता था कि कैसे बांधना है, और वो बढ़िया से बांधे थे, और वो प्रकृति को समझ के उसको किए थे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि वो आजकल जो बांध देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या किया जाए। और एक मैं आपको उदाहरण दूं, मैं इसको पहले बता दूं, उसके बाद दूसरा उदाहरण होगा जो कि हमारे पुराण में है। तो ये जो है ना, इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग जब आए इधर, उसमें क्या है कि अराजकता फैल गया था। ब्रिटिश लोगों को युद्ध में वो लोग तो इसलिए उसको मेंटेनेंस करने के लिए उनके पास कोई समस्या नहीं। तो इसलिए जब ब्रिटिश लोगों को समझ में आया कि भाई ये एक जो है जीवन का धारा है और ये खंडित हो गया है, तो उन लोगों ने भी उसको सही करने के लिए कोशिश की। वो करीब 20 साल उनका इंजीनियर लोगों ने काम किया, ठीक है, और उनको समझ में नहीं आया, और बहुत पैसा भी नष्ट किए, तो उनको समझ नहीं पाए। मैं बताता हूं, आज भी वो एक सब प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूं कोई मेरे को स्टूडेंट मिलेगा तो मैं उनको प्रॉब्लम देने वाला हूं, टेक्निकली ही कैन गेट ए पीएचडी, राइट, ये समस्या है। तो उनको अभी तक भी लोग नहीं समझे हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया भाई, कैसे उसको संभाले। तो उन्होंने उस जमाने में जो लोग थे, वो जो
पहले लोग उसको मैनेज करते थे, क्योंकि पहले क्या है कि सरकार के पास कुछ नहीं होता था, लोग क्या है कि लोग विद्या था और लोग के पास ज्ञान था। अभी क्या है कि कंपनी के पास ज्ञान है, अभी लोग फकर गिरदारी है, लोगों के पास कुछ नहीं है। ये एक बड़ी खराब परंपरा हमारे पास आ गया है, हम लोग सब बर्बाद हो रहे हैं इसी के वजह से कि लोग बेकार हो गए, लोगों के पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोग बहुत चालाक, उन्होंने जाके पूछे, उनको पता है कि भाई कौन क्या कर पाएगा, उनके लोगों को बोले, और उनको थोड़ा पैसा भी दिए होंगे शायद, मेरे को इतना पता है, लेकिन इतना तो लिखा नहीं जाता है। तो उन लोगों ने उनको सही करके रख, तो ब्रिटिश लोग हतचकित हो गए। और वो लोग कौन थे, वो क्या आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग किए थे, वो कोई एमआईटी जो है जैसे कि यूएसए का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाके करके आए थे, नहीं, वो लोग धरातल में थे, वो हमारे ज्ञान परंपरा का वाहक थे। लेकिन दुख की विषय है, जो कारीगर थे उनको हमारे समाज ने छोटा समझ के उनको दलित पतित कह के निष्पेषित कर दिया। वेद में जो लोग कारीगर रहते हैं, जो विश्वकर्मा में कहते हैं, हमारे भगवान को विश्वकर्मा भी कहते हैं, उन लोगों को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन उसके बाद और उसके बहुत के बाद हमारा जब समाज खलित हो गया है, नष्ट हो गया है, तो हम लोगों ने जो इंजीनियर लोग थे उनको हम दलित पतित, आज के भाषा में इंजीनियर, उस समय में कारीगर, और उसको हम नकारात्मक दृष्टि से उसको समाज से निष्कासित करिए, समाज से नष्ट करिए। और उन्होंने क्या कहे, मैं अभी आपके सामने उनका चीज को दोहराता हूं, वो है कॉटन। 1874 में कहते हैं, मैं इसको अंग्रेजी में बोलने वाला हूं, वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट, वो ट्रिब्यूट दिए, मैंने ही गेव ए ट्रिब्यूट फॉर द ग्रैंड एनीकॉट which was revived by this the local people. You say it was from them, the native Indians. We learned how to secure foundation in loose sand of the unmeasured depth. In fact, what we learned from them made the difference between the financial success and failure. For the murderous river irrigations executed by our engineers have been from the first and greatest financial successes of any engineering work in the world, solely because we learned from them. With this lesson about the foundations, we built bridges, wells, aqueducts, and every kind of hydraulic work. We are thus deeply indebted to the native engineers. देखिए, उन लोगों ने हमारे लोगों को सराहना की है, लेकिन हम लोगों ने इनको मारी दी, उनका जो धरोहर था उनको नष्ट कर दिया। मैं भी देखा हूं मेरे जीवन काल में। मैं एक उदाहरण देता हूं, उड़ीसा का उदाहरण है। एक गांव है जो हम जो पढ़ते थे उस समय में, वो गांव एशिया में सबसे बड़ा गांव था, उसका नाम है भुवन। अभी वो गांव नहीं रहा, वो छोटा सा कस्बा हो गया है। लेकिन उस समय में हमारे जो उधर बहुत सारे जो कारीगर थे वो अभी बचे नहीं, अभी चले गए, उसका पैसा जो है चेंज कर दिया। वो ऐसे बनाते थे जो था, मैं अभी जब मेरे को रुचि आया कि मैं सोचा कि मैं जाऊं उधर और उसको फोटो लेके वो कोर्स में डालूं, लेकिन और अभी कोई बचा नहीं, कोई आदमी नहीं होता। आदमी मतलब आदमी है, लेकिन वो काम करने वाला कारीगर नहीं। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, मेरे जीवन में वो घटित हुआ है। मैं एक हल को जो लकड़ी में है उसको देखने के लिए, क्योंकि जो हमारे पराशर ऋषि पराशर देते थे उनको डायमेंशन कुछ दिए हैं, तो मैं उनको देने के लिए 40 किलोमीटर गया और मेरे को जो मिला वो सब चेंज कर दी। ठीक है, हल मिलना आजकल गांव में बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं एक गया जो हाथ का कारीगर, मैं 50 किलोमीटर गया करीब जानने के लिए, मेरे को एक आदमी लेके गया
और हम उधर गए, पहुंचे, हाथ में जो होता है तंत कहते हैं उसको, तो वो वाला हमको मिला नहीं। उधर क्या है, मशीन आ गया। आप देखिए, मैं कपड़ा सिलाई करूं, मशीन में करूं, और कपड़ा में सिलाई करूं या कपड़ा बुनूं, तो हम हाथ में करेंगे, उसमें क्या अंतर है? क्यों करना चाहिए? ऐसे नहीं कि हम आज हाथ में करेंगे तो क्या, हाथ में करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि मैं बताता हूं, मैं कटक का रहने वाला हूं, कटक में मेरा जन्म हुआ है। कटक बहुत क्या है कि पहले जमाने में, करीब 1000 साल से पहले, क्योंकि कटक जो सिटी है वो बेसिकली बहुत पूरा प्राचीन शहर है, तो उसमें हाथ में लोग बहुत महीन काम करते थे सोने में। लेकिन अभी वो कोई बचा नहीं, सब मशीन चल रहा है। तो मैं क्यों करूं? अभी मशीन में करूं या हाथ में करूं, ये सवाल उठता है। मैं आपको बताऊं, आप मशीन में करोगे तो कोई आदमी करता है तो वो गधे हो जाता है। Why? Because man is a creative creature by nature. मैन इज ए क्रिएटिव क्रिएचर बाय नेचर। क्रिएटिविटी आदमी के अंदर नहीं होगा तो आप मानव नहीं रहेंगे, असुर बन जाओ, उसमें मजा नहीं आए। तो आज भारत में जितना लोग है उसमें मानसिक बीमारी ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? मशीन। उसमें शरीर का ताकत कम हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो रहा है, और उसमें तनाव बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मशीन। और आपका जीन चेंज हो रहा है। जो हमारे पूर्वज लोगों का जो परंपरा था, हम कोई आज का लड़के लोग देखता हूं, लड़का लड़की जो भी है, तो उसको देखता हूं तो वो 2-4 मिनट एक जगह पर बैठ नहीं सकते। आजकल बोल भी नहीं पा रहे। मैं जैसे कि मैं देखता हूं हिंदी भाषी लोग हिंदी बोल नहीं पा रहे। तो इसका कारण जो है कि ये जो मशीन का परंपरा है, इसका मतलब नहीं है कि हम युद्ध करेंगे और मशीन यूज नहीं करेंगे, ये नहीं कहता हूं मैं। अभी मान लीजिए हमको अभी के जो दशा है, दिशा है, तो उसमें हमको आधुनिक ज्ञान का भी रखना पड़ेगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी संभालना पड़ेगा। जो पारंपरिक है तो उसको भी हमको लेना पड़ेगा। जो सार्वजनिक काम है, जैसे खेती करना, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। खेती करोगे तो मेरा तो अन्न तो मिलेगा, मेरा अन्न मिलेगा तो मैं और कोई चीज सोच सकता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं, पहले जमाने में भारत में ज्यादातर लोग खेती करते थे। क्यों? मैं कभी सोचा नहीं था, मैं कभी समझता, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, ये हमारे पूर्वज लोग अच्छे थे, समझ में थे, इसलिए कहते थे, करते थे कि खेती करोगे तो प्रकृति के पास रहो। और एक एक गांव में, जो गांव था, गांव अभी नष्ट हो गया, गांव अभी रहा नहीं भारत, जो पारंपरिक गांव है। अभी तो जरा सब शहर बन रहे हैं। जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम आए थे, वो कह रहे गांव को शहर बनाओ, वो पूरा पूरा कुछ कह रहे थे। भाई शहर में नहीं होगा, ये भोगवादी है, भोग में जीवन नहीं जिया जा सकता है, असुर लोग भोग करते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसको हमको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में बताता हूं, जैसे कि मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। इसीलिए मैं मेरा कोर्स में भी मैं दिया हूं कि क्यों हम लोग जो है कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए और आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रांत ने आक्रमण करके हमारे समाज को, हमारे देश को नष्ट किए, हमको पराधीनता में 1000 साल रखे। तो ज्यादा अभी भी हम स्वाधीन नहीं है, हम पराधीनता में जगत में फंस रहे हैं। हमारे ऊपर हमला है अभी भी। वो हमला क्या है? हमारे संस्कृति के ऊपर हमला। जो संस्कृति 1000 साल पराधीनता रहने के बाद भी हमारा बचा कुचा है, उसको नष्ट करने के लिए हमारे अभी अंग्रेजीकरण हो रहा है। हमारे ऊपर अभी ये जो मोबाइल है उसको थोप दिए। अभी किसी के पास समय नहीं है।
अभी जीना लोगों का हराम हो गया, लेकिन लोग उसको पागलपन डेवलप हो गया। तो इसीलिए इसको, देश को बचाना है तो हमको प्राचीन परंपरा में जाना पड़ेगा और जीना पड़ेगा जैसे कि हमारे अंदर प्रज्ञा का उद्भव हो। और प्रज्ञावान लभते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन। प्रज्ञा मिलता है तो हम कुछ भी करने के लिए सामर्थ हो सकता है। तो मैं इसको कहूंगा, भारत को बलशाली, वैभवशाली, वित्तशाली, ऐश्वर्यशाली देश बनाना है तो हम लोगों को आज की जो है दुनिया है, आज में जो चल रहा है प्रपंच है, तो उसमें हमको निकल के जाना पड़ेगा। हमारे पूर्वज लोगों ने जो रास्ता दिखाया है उसको समझना पड़ेगा। आज के तौर पर जो जरूरत है उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कॉपी कर लो, जो हमारे पूर्वज लोगों ने किए हैं या कहे हैं, उसको कॉपी आप नहीं कर सकते। लेकिन उनको समझने के बाद धरातल में लाने के लिए जीवन को यज्ञ के वेदी पर आहुति देना पड़ेगा। हम जीवन नहीं देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसे तो भाषणबाजी बहुत होता है, भाषणबाजी करने के लिए भारतीय लोग माहिर है आज के डेट में। तो जब तक नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, मेरा अभी संकल्प है, पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग साथ में आए तो कर सकते हैं, कि ये भारत को बनाने के लिए एक ही चीज जो कर सकता है, प्राचीन परंपरा में जो गुरुकुल था तो वो हमको रास्ता दिखा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको समझे और जो हमारे साथ है और हमारे जो परंपरा है तो उसको जोड़ने के लिए आप कोशिश करें। और मैं आपको अभी एक छोटा सा जो क्या है कि एक लिंक भेज रहा हूं, जो मैं एक क्लास लेता हूं भगवत गीता के ऊपर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको अभी चार्ट बॉक्स में दे रहा हूं, नमस्कार क्यों करना। पहले हैंडशेक करते हैं आजकल, कुछ तो ये हमारे जो भी पहले जमाने में हमारे जो पूर्वज लोगों ने सिखाया ज्यादातर, और कुछ लोग कुछ चीज विकृति का रूप धारण किया है, उसको छोड़ दीजिए। और ऐसे नहीं कि जो भी क्या है कि हमारे था और सब कुछ सही है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके अंदर जो भी है उसके अंदर बहुत सारे चीज है जिसको हम लोग आज भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप कोई भी चीज ये जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी जो चार्ट बॉक्स में कुछ जो नमस्कार क्यों करना दे रहा हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसको एक जीवन का लक्ष्य बना के अपने जीवन को आहुति देंगे तो हम लोग जरूर आगे बन सकते हैं। और भारत पूरा दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ताकत रखता है, और हमारे परंपरा में है, और हमारे शास्त्र में लिखा गया है, हमारे पास अभी भी सबूत है। उसके बारे में मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हूं, तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं और सबका मंगल हो ये कामना करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। And from this celebration, I am recalling the words of John Hollowhorn. Someday the earth will weep. She will beg for her life. She will cry with tears of blood. You will make a choice if you will help her or let her die. And when she dies, you too will die. So thank you, sir, for such inspirational words.